Hello everyone. Today I want to tell you regarding practical and especially salt analysis practical, that is qualitative analysis. Okay. So first of all you have to see acidic radical. As you know, regarding acidic radical, it is divided in three groups. First group, that occurs due to the dilute sulfuric acid. Second number, that take place with the help of concentrated sulfuric acid. And third number, that is known as the spatial group. Okay, clear? So you see this here. In a first test tube, you see it, test tube number 1, we take unknown salt and add dilute sulfuric acid. Okay? Suppose if carbonate ion is there, then gas will come along with the bubbles on the upper side of the test tube that indicate presence of carbonate ion. From that the CO2 gas is coming out. For confirmation of the CO2, we pass that carbon dioxide in lime water. For confirmation, that lime water change in a white milky precipitate, it means it is confirmed in a given compound, unknown compound especially, or mixture, carbonate ions are present. Okay? If suppose carbonate is not there, maybe sulfite, because these are the examples which comes in that group number 1. Okay? In that we have to use dilute sulfuric acid. Okay? Now see that if suppose SO3 ion are present, sulfide, it is sulfite, then SO2 gas will come. Then we will confirm, we will take a filter paper. On that little amount of K2Cr2O7 we will take. That will change in a green color that represent presence of sulfide ion in given unknown salt. If suppose both are not there, carbonate as well as sulfide, we will try for sulfide. We take salt, dilute sulfuric acid, very bad smell will come of hydrogen sulfide gas, that is also known as a rotten egg gas. For confirmation, we pass that gas, we will take lead acetate on filter paper. When that gas will come in a contact of lead acetate, that will form a black color. That represent to the sulfide acidic radical is present in given unknown salt. If it is not there, then we will try for nitrite. For nitrite, same reaction will be there, unknown salt, dilute sulfuric acid. Then that vapors, we will take a filter paper. On filter paper, Ki, potassium iodide, starch plus acetic acid solution we will keep on that. Then due to the presence of the NO2, that turn in a blue color, that represent to the confirmation of NO2 ions. Now one is left, last is left here. What will be there? Which one is left? Only
Acetate is left. For that, unknown salt, sulfuric acid we are taking. Then vinegar like smell will come. Then we will do confirmation test. Confirmatory test will be there with the help of neutral ferric chloride. We will take neutral ferric chloride. We will add in that solution, in a initial solution, in a previous solution. After pouring of the neutral ferric chloride, that change in a red color, it represents to the confirmatory test of the acetate ions. So these 5 acidic radicals are there: carbonate, sulfite, nitrite, as well as acetate ion. With the help of this procedure, so children, it will be helpful for you, and it is especially for 11th as well as the 12th class children. So you can understand a proper way. You will not in a trouble during the salt analysis practical. Okay, thank you. अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 2. ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए हमारा जो मेन रिएजेंट है वो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. रेडिकल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, ये है. सबसे पहले हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली. टेस्ट ट्यूब में हमने अननोन सॉल्ट ले लिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया. ओके, हीट किया, उसमें कॉपर टर्निंग डाल दी. कॉपर टर्निंग डालने पर आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर के फ्यूम्स रिलीज होने लगते हैं. और ब्राउन कलर के फ्यूम्स आ गए, इट मीन्स ये इंडिकेशन है हमारा कि नाइट्रेट एसिडिक रेडिकल हमारे अननोन सॉल्ट में प्रेजेंट है. बच्चों, इसके लिए एक दूसरा टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिसे हम ब्राउन रिंग टेस्ट भी बोलते हैं. इसके लिए देखिए क्या करना है आपको. टेस्ट ट्यूब लीजिए. टेस्ट ट्यूब में अननोन सॉल्ट लिया, जिसको मिक्सचर बोलते हैं, प्लस वाटर ले लिया. उसमें तुरंत तैयार किया हुआ फेरस सल्फेट आप ऐड कर दीजिए. उसको थोड़ी देर रख दीजिए, स्टेबल होने दीजिए, हिलना नहीं चाहिए वो लिक्विड. ये दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया. वो पहले वाली टेस्ट ट्यूब में साइड से बिल्कुल धीरे धीरे आपको जो है ऐड करना है, ड्रॉप वाइज नहीं करना है. साइड से धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड इसके कांटेक्ट में जहां आएगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से उस जंक्शन में एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी, जिसे हम ब्राउन रिंग बोलते हैं. इसका फॉर्मूला जो होता है FeSO4.NO. इसका पूरा नाम बच्चों होता है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट. नाइट्रेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट बेटा जो होता है बच्चों, वो हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट होता है. ये आपको एग्जाम में, वाइवा में, प्रैक्टिकल में, वाइवा में भी पूछा जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में से है. ओके, अगर हमारा नाइट्रेट है तब तो हमारे ये दोनों हो गए, कॉपर टर्निंग का भी हो गया और हमारी ब्राउन रिंग बन गई. अगर मान लो नहीं है तो यहीं से पता लग जाएगा हमें. हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के लिए देखिए क्या किया, थोड़ी सी पंजेंट स्मेल गैस की रिलीज होगी, मे बी क्लोराइड हो सकता है. उसके लिए हमने ग्लास रॉड ली, उसको NH4OH में डिप किया, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रख दिया. जब यहां से गैस रिलीज होगी, इसके कांटेक्ट में आएगी, तो व्हाइट फ्यूम्स जो है रिलीज होंगे. व्हाइट फ्यूम्स रिलीज हो रहे हैं तो बच्चों समझ लीजिए क्लोराइड का इंडिकेशन है. दूसरा भी आप कर सकते हैं. सॉल्ट लीजिए, मिक्सचर लीजिए, उसमें आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालिए. उसमें आप जो है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का पाउडर बच्चों ऐड कर दीजिए. आप जो है देखेंगे उसमें से ऑरेंज येलो कलर के फ्यूम्स रिलीज होंगे एफरवेसेंस के फॉर्म में. ओके, चलिए, अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड रॉड से व्हाइट फ्यूम्स नहीं दिखाई दे रहा है, हम आगे बढ़ जाएंगे. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या है. रेडिश ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होंगे.
अगर ऐसा है तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में कंफर्म करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड कर लिया। मैग्नीज डाइऑक्साइड बच्चों ऐड करेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स रिलीज होंगे। वो इंडिकेशन है हमारा कि ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए ये तीनों चीजें तो हो गई, मान लीजिए तीनों नहीं है। अब हमारे क्या बचते हैं, आयोडाइड बचता है और ऑक्सलेट बचता है। हमने क्या किया, मिक्सचर लिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सिल्वर नाइट्रेट बच्चों पास करा दिया। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमने लिया, अगर येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है तो हमारा आयोडाइड आयंस है। दूसरा भी है इसके लिए, स्टार्च पेपर आप लीजिएगा। स्टार्च पेपर में यदि इस आयोडाइड कंपाउंड के वेपर्स को हम लेते हैं तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, अब बच्चों देखिए लास्ट हमारा है ऑक्सलेट। सेम चीज वैसे ही टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर लीजिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों लीजिए। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब हमने ऐड किया उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिक्स कर दिया। व्हाइट प्रेसिपिटेट बच्चों यदि आता है तो वो कंफर्म हो गया कि हमारा ऑक्सलेट आयन प्रेजेंट है। अब देखिए सारे हमारे रेडिकल्स हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है, ऑक्सलेट है। ये 5 रेडिकल्स हमने ग्रुप 2 में बच्चों जो है फाइंड कर लिए। पहले जो हमने किए थे वो ग्रुप 1 का किया था, जिसमें हमने उसमें भी 5 थे हमारे। ओके, अब हमारा है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में बच्चों हमारा जो आता है वो है हमारा सल्फेट एंड फॉस्फेट आयंस। ओके, क्लियर? तो इससे आप लोगों को बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। आराम से बच्चों ये दोनों वीडियो को समझिए, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 तीनों आपको जो है मिलेंगे। आप इजीली एनआईएन को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। आराम से, टेंशन लेने की बच्चों जरूरत नहीं है। समझ के बहुत अच्छे से, समझदारी से आप प्रैक्टिकल को जो है कर सकते हैं। होता है एग्जाम तो फोबिया देखिए होता है, हमेशा कोई भी एग्जाम हो बच्चों, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन है। फ्रेज आपने सुनी है, एवरी प्रॉब्लम इज हैविंग सॉल्यूशन। ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रन। अब बच्चों देखिए थर्ड ग्रुप है और थर्ड ग्रुप में आपके 2 रेडिकल्स हैं, सल्फेट एंड फॉस्फेट। ओके, पहले देखिए क्या किया हमने। फॉस्फेट के लिए टेस्ट ट्यूब लिया, मिक्सचर है, कंसंट्रेटेड HNO3, अमोनियम मॉलिब्डेट हमने ले लिया। येलो कलर का प्रेसिपिटेट यदि आ गया तो वो आपके फॉस्फेट को इंडिकेट करता है। हीट करना पड़ेगा उसको, तो हीट करिए, उसके बाद में कूल करिए। कूल करने के बाद में उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट मिक्स कीजिए, वो जाकर के येलो कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा। अगर येलो कलर नहीं आता है तो सेकंड हमारा है फिर वो सल्फेट है। ठीक, सल्फेट के लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट है। मिक्सचर लीजिए, डाइल्यूट HCl, बेरियम क्लोराइड, उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाएगा। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका सल्फेट आयन है। इसका दूसरा भी है, सेम चीज है, मिक्सचर है, डाइल्यूट HCl है, आप जो है लेड एसीटेट यूज कर लीजिए। उसमें भी क्या आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बच्चों आ जाएगा, जो रिप्रेजेंट करेगा आपको कि सल्फेट आयन जो है प्रेजेंट है गिवन अननोन सॉल्ट में। बच्चों ये पूरे हमारे हो गए ये एनायन के जो 3 ग्रुप्स थे एसिडिक रेडिकल के, एक डाइल्यूट HCl वाले, एक कंसंट्रेटेड वाले और एक थर्ड नंबर जो स्पेशल ग्रुप बोला जाता है, जिसमें कोई हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट नहीं ले रहे हैं। मेनली हम बेरियम क्लोराइड लेते हैं और लेड एसीटेट लेते हैं सल्फेट को चेक करने के लिए। फॉस्फेट को चेक करने के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट जो है लेते हैं। दोनों का कलर अलग है, सल्फेट में वाइट आएगा और आपका फॉस्फेट में देखते हैं आप येलो कलर आएगा। अब बच्चों आगे हमने एनायन तो चेक कर लिया, आगे हमें जो बढ़ना है इसके बाद अब हम
कैटायन जो है फाइंड करेंगे।